Assalamu alaikum. Can you hear me, class? Yes, Assalamu alaikum, ma'am. ma'am. Yes. Walaikum salam. Okay. We will carry on. We will resume actually where we left online class. Okay. That is microbiological challenge under the heading of factors affecting the choice of disinfectant. Okay. Mainly. So we have discussed the microbial challenge posed by bacterial spores, vegetative bacterial cells, and fungi also. So, as I told you, if I ever ask you to compare fungal spore or bacterial spore, the main difference is that bacterial spores are species or entities for the survival. Okay, these are resistant, but these are not meant for reproduction. Fungal spores are meant for reproduction. Fungal spores are less resistant than bacterial spores to disinfectants. Okay, these are easily fungal spores are easily killed. Okay, bacterial spores will only grow when they find favorable conditions. Otherwise, they will not grow. Okay, and in the example also you can observe these are mostly just like candida, trichophytans are dermophytes. Candida causes infection on mucus. Aspergillus can cause, in fact, Aspergillus niger also, its spores usually are carried by wind. Okay, so Aspergillus may also cause pulmonary infection because it may get inhaled, and if the patient आवाज सिर्फ बेटा आपको स्लो आ रही है या सबको स्लो आ रही है, मसला ये है ना? No, ठीक है। ma'am, सही आ रही है। तो इसका मतलब है बेटा आपके कुछ उसमें मसला है स्पीकर में। अच्छा जनाब, अब क्या करेंगे? अब यू शुड नोट डाउन और यू शुड keep in mind that which disinfectants are effective against fungi. Okay, phenols, chlorhexidine, iodine, and citramide. Iodine solution, not iodophore, and citramide are effective. Citramide belongs to the class of quaternary ammonium compound. It is a cationic surfactant. Okay, you will study the classification of surfactants also in physical pharmacy, and also when we will discuss preservatives, especially for our lab. Okay, so we will use this. Citramide is very commonly used in cosmetics. Okay, and these are effective against fungi. Okay, the next entity is viruses. So as we have discussed, the we can see the micro of viruses. So in that we have discussed two classes based on lipid or the envelope, a sheet surrounding the viruses. Okay, so generally it is considered that those viruses which are enveloped, they might have a protective sheet, but the case is just opposite. Non-enveloped viruses are more resistant. Okay, envelope make them we can say sensitive to or susceptible to disinfectant. So non-lipid or non-enveloped viruses are more resistant to disinfectants. Okay, and they are also involved in nosocomial infections. Nosocomial infections, again, that is hospital acquired infections like rotavirus. Rotavirus is very common cause of diarrhea in children also. Okay, picorna virus,
adenovirus. Adenoviruses are responsible for mostly upper respiratory tract infection, and you have noticed that they easily for sore throats, they easily are transmitted from one person to uh, another person, even in a household. अच्छा जनाब, अब एक और कंप्लेन आई है आयशा की, ये आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। अब बेटा आप नोट करके बताएं मुझे, आप सही हुई कि नहीं हुई। अच्छा जनाब। मे बी। अच्छा जनाब, मैंने खुद, आपको पता है मेरी क्लास क्यों देर से शुरू हुई है, क्योंकि मैं अपना हैंड फ्री ढूंढ रही थी। जी, पिकोडना वायरस, पिको आर भी आएगा, पिकोडना वायरस। ठीक है। पिकोडना वायरस की एग्जांपल जो है ना, वो आपके पास है, दैट इज पोलियो वायरस है। ठीक है। अच्छा जनाब, हेमरेजिक फीवर। ये हेमरेजिक फीवर शुक्र है कि अभी तक यहाँ नहीं आया। दैट वाज एक्चुअली रिपोर्टेड फर्स्ट इन अफ्रीका। ओके। इबोला एंड मार्बर्ग, इबोला virus, why they are called hemorrhagic fever viruses, because both of these viruses cause hemorrhage. Okay. And both are deadly viruses and very quickly transmitted, and also very much resistant to, highly infectious, because a very few viruses can cause deadly infection. Okay. And it is very difficult to disinfect them also. Okay. So they were only restricted by strict preventive, I can say, measures, uh, preventing the transmission. Otherwise, we do not have any cure or any vaccine for both of these. Okay, for Ebola and Marburg. Even Ebola was transmitting from the dead patients. Okay, when it spread in Africa. Then we have hepatitis A. Hepatitis A is considered the most resistant virus to disinfection, but luckily, hepatitis A is a self-limiting virus, means it causes infection, it causes hepatitis, but this hepatitis is self-limiting. Okay, it causes diarrhea, it causes vomiting, and LFT, yeah, abnormal LFT values. Okay, it causes jaundice, but because it is self-limiting, so we do not need, usually we do not need vaccination or immunization against hepatitis A, and the transmission is through food, because it is actually ingested. Okay. So only, what care should we take to prevent the transmission is that we should not take contaminated food or the food which is not well cooked. Okay. So it is usually transmitted with food. Okay, but it is resistant to disinfection. Okay. Then among enveloped viruses, okay, we have viruses with lipid envelope. They are less resistant to disinfection. It doesn't mean that we should not consider these viruses while we are carrying out disinfection. Okay, herpes virus and pox virus. Okay, herpes virus, which causes herpes simplex, for example, in humans, and pox virus, like smallpox virus. So we have almost, we can say, throughout the world, smallpox has been controlled by vaccination. Okay, that is active immunization. So it's not, we can say it's not such a threat, but pox virus also exists in cattle. Okay, and herpes virus
usually it causes skin infections, okay? Herpes simplex, for example. These causes, but these are very, very, we can say, painful and troublesome, and patient require uh, symptomatic treatment. Again, we do not have a cure, but at least these are not as deadly as we can say hepatitis B or Ebola or Margate or Marburg or COVID-19. Okay. Then among the most troublesome we have HIV and HBV. Okay. Human. All viruses are killed at higher temperature. Okay. Almost all, except some of them which are causing diarrhea. ठीक है, जैसे ये आपके रोटा वायरस है, रोटा वायरस के कुछ है फॉर्म जो गर्म पानी में, जैसे हम वाटर बॉईल कर लेते हैं घर में अगर कुछ लोग पीने का, तो सम वायरसेस हैं जो उसको सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप पानी को बहुत अच्छी तरह से बॉईल नहीं करें, क्योंकि हम लोग पानी को बॉईल करते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो कुछ वायरसेस हैं जो हीट रेजिस्टेंट हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वायरसेस, ओके, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर किल्ड बाय हीट। अच्छा, जो जिनको ब्लड से ट्रांसमिशन होना है वायरसेस का, जैसे HIV है, HBV है, ये ये भी रेजिस्टेंट है हीट से। ठीक है, और हाई लेवल डिसइंफेक्शन की आपको जरूरत पड़ती है, जो हमने डिस्कस किए थे कि 3 लेवल होते हैं, हाई, इंटरमीडिएट एंड लो लेवल। तो हाई लेवल इन एक्चुअली व्हाट वी डू, आपको कहाँ डिसइंफेक्शन चाहिए? आपको डिसइंफेक्शन चाहिए रीयूजेबल इक्विपमेंट्स में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा सिरिंज कंटेमिनेटेड वो हम रीयूज नहीं करते। उनको क्या किया जाता है, उनको इंसिनरेशन की जाती है। इंसिनरेशन मीन्स उनको बर्न आउट कर दिया जाता है, ताकि वायरसेस भी मर जाएं और इक्विपमेंट भी खत्म। लेकिन जो रीयूजेबल इक्विपमेंट है, उसका हम क्या करें? उसको हम HBV और HIV से अगर आप बचाना चाहते हैं, और वो इक्विपमेंट हीट को भी, अब बेटा कैसे रिकॉर्ड होगा? अच्छा, मसला पता है क्या है? देखें, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है ना, इस मेरी इस ID पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, गूगल मीट पे। अब उनके लिए करना पड़ेगा कि इस प्रेजेंटेशन के साथ रिकॉर्डिंग करके डालना पड़ेगा गूगल क्लासरूम बना के। ठीक है बेटा, हालांकि अभी तो 100 हुए भी नहीं है, फिर क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो? जूम पर टाइम कम होता है, मसला ही होता है। जूम जो है ना, वो 30 मिनट्स के बाद, हाँ, जूम पे भी स्टूडेंट की भी लिमिट है और जूम पे टाइम की भी लिमिट हो जाती है। यानी अगर आपकी स्ट्रेंथ पे तो शायद वो अलाउ कर दे, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा की उसकी लिमिट नहीं है किसी भी मीटिंग की। मैंने जूम पे वाइवा वगैरह लेके देखा है बच्चों का, तो वहाँ पे 25 मिनट्स के बाद ही वो, हाँ, वो 25 मिनट्स के बाद ही वो शोर मचाना शुरू कर देता है कि भाई टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। ये मसला है। अच्छा जनाब, अब मेनली जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेंशन, ओके, सिर्फ उसमें जो कुछ एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट्स हैं, HIV और HPV। हाँ, तो हम आखिर में अटेंडेंस के बाद ये करेंगे, देखेंगे कि कौन आ रहा है। ठीक है ना, कौन बैठा हुआ है ज्वाइन करने के लिए? इतनी देर से क्या सो रहे थे? अच्छा जनाब, HIV और HBV में अब आप देखें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस में, इनमें दोनों में सबसे ज्यादा मसला क्या होता है? कंटामिनेटेड ब्लड इक्विपमेंट, जो जो इक्विपमेंट जो आपके ब्लड से कंटामिनेट हो। कैथेटर्स वगैरह से ये नहीं हो रहा ट्रांसमिट, लेकिन कैन्यूला है, सिरिंजेस हैं, IV ड्रिप्स हैं, इनको आपको इंसिनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर लैब्स में, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल लैब्स है, वहाँ कोई ब्लड स्पिल होता है, तो आपको केयर करनी पड़ेगी। मसला आता है जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स का कोई हॉस्पिटल में, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर हो रहा हो, और उस प्रोसीजर में डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को किसी प्रिक का खतरा हो, जब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप सारी नीडल्स, या फॉर एग्जांपल कोई माइनर सर्जरी है, आपने सूचर्स के लिए नीडल आपने यूज़ किया,
तो वो सब आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी। कोई भी इक्विपमेंट जो ब्लड से कंटेमिनेटेड हो वो बहुत मुश्किल है उसको आप डिसइंफेक्ट कर सकें। ठीक है। अब डिसइंफेक्शन का मतलब ये है कि आप इसकी हाई लेवल डिसइंफेक्शन करें। ठीक है। और रीयूजेबल इक्विपमेंट्स में हाई लेवल डिसइंफेक्शन में समटाइम केमिकल्स जो है वो बहुत ख़राब भी करते हैं इक्विपमेंट्स को। ठीक है। अगर उनका मटेरियल बहुत अच्छा ना हो, फॉर एग्जांपल अगर स्टेनलेस स्टील है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है। अच्छा, ये किससे किल होते हैं मोस्टली? हाई लेवल डिसइंफेक्शन आप करते हैं एल्डिहाइड्स से। एल्डिहाइड्स में मैंने आपको 3 नाम बता चुकी हूँ, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और आपके पास है ऑर्थोफिथल्डिहाइड। ठीक है। हाइपोक्लोराइड ग्रुप में आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइट है। और पर ऑक्सीजन कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और पर एसिटिक एसिड है। ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बहुत इफेक्टिव है HIV HBV के लिए। अगर आपने किसी रियूजेबल इक्विपमेंट को करना है, या फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बताया कि किसी लैब में या हॉस्पिटल में कहीं ब्लड स्पिल होता है, तो पहले उसको क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद उस जगह के लिए आपको हाई लेवल डिसइंफेक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो कोई फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट जहां आप रखते हैं, कोई स्टील की ट्रे हो या कोई काउंटर हो लैब में जहाँ पे ब्लड स्पिल हो हुआ है। ठीक है। अच्छा, कोविड 19 अभी ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, तो इट्स इट्स वेरी ससेप्टेबल टू अल्कोहल्स। यानी आप आराम से इसको अल्कोहल से, जो आप जिसको आप सैनिटाइजर कहते हैं, एक्चुअली वो है आपका 70% अल्कोहल और वो एंटीसेप्टिक है, लेकिन हमने उसको एक टर्म सैनिटाइजेशन की यूज़ होती है जिसका कॉमन मीनिंग ये है कि आप वहाँ से जर्म्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। ऑल जर्म्स आर रिमूव्ड। तो उसमें आप जो अल्कोहल 70% अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं अपने सैनिटाइजर्स में, वो इफ़ेक्टिव है इसके लिए, कोविड 19 के लिए। ठीक है। इसके अलावा तो हाईली ट्रांसमिटिंग में आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस भी है। ठीक है। वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इज वेरी ससेप्टेबल टू डिसइंफेक्शन, बहुत इजीली डिसइंफेक्ट हो जाता है, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन रेट क्यों हाई है? क्योंकि वो स्नीजिंग और कफिंग ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, उससे ट्रांसफर होता है कि वो हवा में फैल जाते हैं और फिर दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उनको अननोइंगली इनहेल कर लेता है। तो इन्फ्लुएंजा के फ्लू के सारे पेशेंट्स को चाहिए कि वो स्नीजिंग और कफिंग ना तो किसी पब्लिक प्लेस में करें और मास्क यूज करें। ठीक है। अपने घर में भी आप नोट कीजिएगा, किसी एक को फ्लू होता है तो बारी बारी सब लोगों को हो जाता है, और सम टाइम तो एक ही साथ सबको हो जाता है। तो वो फ्लू वायरस ट्रांसमिट बहुत जल्दी होता है, लेकिन वो डिसइंफेक्शन से बहुत इजीली खत्म होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। तो जो अब यहाँ आप नोट कीजिए कि ये यहाँ पे हमने जिक्र किया है, या तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के ब्रेकआउट में इन्वॉल्व है, या वो हाईली इन्फेक्शियस है, या वो हाईली स्प्रेडेबल है। ठीक है। ट्रांसमिशन उनका बहुत फास्ट है। ठीक है। इसी तरह के जो वायरसेस होते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं हमारे लिए। ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आपका है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो है, अच्छा प्रोटोजुआ में क्या खास बात है, क्या चैलेंजिंग है? देखिए, प्रोटोजुआ एक अपनी लाइफ साइकिल में एक सिस्ट फॉर्म बनाते हैं। अगर आप प्रोटोजुआ में आपने मलेरिया पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम को पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मोडियम की खास बात यह है कि वो तो ट्रांसमिट ही मॉस्किटो बाइट से होता है। ठीक है ना। वैसे तो वो ब्लड से ट्रांसमिट नहीं हो रहा अनलेस ये कि ब्लड डोनेट करे, लेकिन मलेरिया को इन्फेक्टेड पर्सन तो ब्लड डोनेट नहीं करेगा। अच्छा, एक एक्एंथमीबा का रिपोर्ट हुआ है डिसइंफेक्शन में इन कॉन्टेक्ट लेंस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या था? वो कॉन्टेक्ट लेंस सोल्यूशन कंटामिनेटेड था, और जो भी उन्होंने स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए यूज किए थे उसमें वो सिस्ट सरवाइव कर गया।
ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कॉन्टेक्ट लेंस वेयरर की कैरेटिन लेयर, जो आपकी कॉर्निया जो कैरेटिन कॉर्निया में जो कैरेटिन लेयर है, उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज की, केराटाइटिस कॉज किया। और अगर ये सही से ट्रीट ना हो, इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करना भी बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत पता ये चला कि काफी सिस्ट जो होते हैं प्रोटोजोआ के, दीज आर वेरी मच रेजिस्टेंट, तो अब इनके लिए क्या कॉम्बिनेशन, खास तौर पे एकेंथमीबा के लिए जो बताया गया, दैट इज पोलीअमाइनो प्रोपाइल बाइगुआनाइड। बाइगुआनाइड एक ग्रुप ऑफ डिसइंफेक्टेंट है, केमिकल्स है, एंटीसेप्टिक नहीं है ये। पोलीअमाइनो प्रोपाइल बाइगुआनाइड एंड पॉलीहेक्सामीथिलीन बाइगुआनाइड। हम आगे जहां भी इसका नाम आएगा हम PHMB लिखेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि परऑक्साइड कंपाउंड भी इसके लिए इफेक्टिव है सिस्ट के लिए। हालांकि ये काफी रेजिस्टेंट है सिस्ट, यानी आप अपनी पूरी लाइफ साइकिल में वो इतना रेजिस्टेंट नहीं है जितना वो सिस्ट फॉर्म में है एकेंथमीबा। ठीक है। जो हमारा ह्यूमन पैथोजन दूसरा जो है वो आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, वो भी प्रोटोजोआ है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन बिल्कुल अलग है। उसका ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें भी, लेकिन वो सिस्ट ही सॉइल से या वाटर से सिस्ट जाते हैं, या फूड के साथ अगर फूड को प्रॉपरली वॉश नहीं किया जाए, कुक नहीं किया जाए, तो उसके सिस्ट भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर नॉट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर पेप्टाइड्स। ओके, समझने के स्मॉल प्रोटीन चेन्स हैं, लेकिन सिर्फ इनका सबसे बड़ा मसला क्या है, दीज आर हाईली इन्फेक्टिव। ठीक है ना। अच्छा, इन्फेक्शन भी कहाँ हो रहा है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और आई टिश्यू। आप देखें यहाँ हाई लिपिड कंटेंट वाले वो हैं हमारे टिश्यू। ठीक है। अच्छा, कैटल्स में जो आपके पास होता है, जो मैड काउ डिजीज भी आप इसको कहते हैं, मैड काउ डिजीज का नाम है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी। ठीक है। और ह्यूमंस में यही चीज, यानी प्रियॉन्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रुट्सफेट जैकब डिजीज। ठीक है। इसके अलावा एक और नाम आपने सुना होगा कुरू के नाम से, KURU। कुरू के नाम से भी ये प्रियॉन से इन्फेक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि ये रिपोर्ट हुआ था एबोर्जीन्स में। जैसे ऑस्ट्रेलियन एबोर्जीन्स हैं, जो नेटिव्स हैं वहाँ के, कि उनके यहाँ कोई इस तरह का कल्चर था कि जो ट्राइब के चीफ की डेथ होगी, तो जो उसका रिलेटिव है या उसकी जो फैमिली है या जो उसके सक्सेसर हैं, वो उस डेड पर्सन का ब्रेन जो है उनको खाना होता था। मतलब आप सोचे कहाँ कहाँ इग्नोरेंस ने कहाँ तक पहुंचा दिया इंसानों को। तो उससे वो, अब वो अगर वो पेशेंट जो है वो कुरू से या ये यानी प्रियॉन इन्फेक्टेड डिजीज से उसकी डेथ हुई है, तो वो खाने से भी ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। ह्यूमंस में ट्रांसमिशन बता रहे हैं, कैटल्स में भी इसका ट्रांसमिशन है, और इसका ट्रांसमिशन होता है। और दूसरा एक, क्योंकि ये इजीली डिसइंफेक्ट नहीं हो रहा, इक्विपमेंट्स हैं कंटेमिनेटेड। यानी क्या हुआ कि अगर एक पेट जो है उसने एक जगह या एक पोर्शन में, फॉर एग्जांपल कोई कैटल फार्म है, उसने एक जगह एनिमल्स को एग्जामिन किया या उनको कोई ट्रीटमेंट किया, फिर उसने वो ही इक्विपमेंट ले जाके दूसरी जगह यूज किया, तो वो उससे भी वो ट्रांसमिट हो गए। अब यानी आपने अगर जो एक आउटब्रेक हुई थी कनाडा में, क्योंकि कनाडा जो है वो बीफ एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, US को और दूसरे कंट्रीज को, तो वहां पे ना पूरे पूरे फार्म्स को किल करना पड़ा था, पूरे पूरे फार्म्स को, थाउजेंड्स ऑफ काउस को, कैटल को उन्होंने उनको किल करना पड़ा। इतना ये प्रियॉन जो है वो हाईली इन्फेक्टिव और
रेजिस्टेंट है टू डिसइंफेक्शन, वेरी रेजिस्टेंट। अब देखिए, अब जो इक्विपमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं किसमें, बायोप्सी में, या उस काव की आपने टिश्यू को लेके एग्जामिन किया, आपने माइक्रोस्कोप में देखना है, तो अब वो तो सारे कंटामिनेटेड हो गए। अब उनको क्या आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप बर्न भी नहीं कर सकते, सबको जला भी नहीं सकते, तो आपको डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा ना। अभी कोई सिरिंज तो नहीं है कि आपने लेके जला दी, ठीक है ना, डिस्पोजेबल तो नहीं होते सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप क्या करना पड़ा उनको डिसइंफेक्शन के लिए, बड़ी मुश्किल से बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट यूज किए गए। इवन हीट कैन नॉट इफेक्टिवली किल, हीट को भी अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रिलेशनशिप फॉर स्टेरिलाइजेशन है, उससे भी ज्यादा आपको, यानी 121 डिग्री सेंटीग्रेड बताई गई है जो फार्माकोपिया में, फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग बैक्टीरियल स्पोर्स को भी, रेजिस्टेंट स्पोर्स को भी केयर कर देते हैं, वो भी प्रियॉन्स को डिसइंफेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, स्टेलाइज नहीं कर पा रही। तो WHO ने जो रिकमेंड बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट का किया किया, क्या 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 उन्होंने, अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट हीट यूज कर, तो उनको आप क्या करेंगे, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिसइंफेक्ट करने के लिए उनको सोडियम हाइपोक्लोराइट, दैट इज ब्लीच, उसके सोल्यूशन में 1 घंटे तक आपको इमर्स करना है, 1 घंटे, ठीक है, 60 मिनट्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम। इसका सोचें आप, डिसइंफेक्शन का टाइम कितना लंबा हो गया स्टरलाइजेशन का। उसके बाद आप ऑटोक्लेव करें, और ऑटोक्लेव में मैंने आपको बताया कि ऑटोक्लेविंग दैट इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, स्टीम करते हैं हम अंडर प्रेशर, वहां पे आपको 134 डिग्री टेम्परेचर चाहिए 3 मिनट्स के लिए, ठीक है। और रूटीन क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेविंग से हो जाएगी, रूटीन क्लीनिंग जो है वो आप, यानी पहले आप उसको पूरा क्लीन करें, फिर उसको इमर्स करें, फिर उसको ऑटोक्लेव करें। अब आपको सोचे कि इतनी सारी चीजों के बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट बचेगा, ठीक है, वो बहुत ही आप मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट तो बच सकते हैं, लेकिन और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स आपके काम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है प्रियॉन्स है वो पैटर्न से नहीं खत्म हो रहे, नहीं, प्रियॉन्स स्ट्रॉन्ग एसिड से नहीं हो रहे। यानी जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आप मेटल पे लगाए तो मेटल खराब हो जाए, फ्लोर पे पूरा धब्बा पड़ जाएगा, फैक्ट आप यूज नहीं कर सकते, प्लस वाले, एक ये होंगे फ्री रेजिस्टेंट है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं आपकी, जो ये ग्लूटाल्डिहाइड, एक एल्डी, ये ग्लूटाल्डिहाइड स्टरलाइजिंग एजेंट है और डिसइंफेक्टेंट है, इसका भी असर नहीं होता प्रियॉन्स पे। इसी तरह आयोडीन है, आयोडीन सबको किल कर लेता है, बैक्टीरिया को, फंजाई को, वायरसेस को, लेकिन प्रियॉन्स के अगेंस्ट आयोडीन का नहीं है। फिनोल का ग्रुप तो, जो आपका फिनाइल है, फिनोल से तो खैर बहुत सारी चीजें रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, फिनाइल, फिनोल स्पोर्ट्स पे भी बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन फंगस वगैरह पे कर लेता है, वायरसेस पे कर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो भी इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह अल्कोहल्स का पूरा ग्रुप इन डिसइंफेक्टेंट, पूरा ग्रुप है, लेकिन वो भी यूजफुल नहीं है प्रियॉन्स। तो आप इससे अंदाजा करें कि ऑल्दो प्रियॉन्स के पास ना DNA, ना RNA है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये फैक्ट कितनी ज्यादा ये रेजिस्टेंट है। इनके लिए एक स्पेशल आपको मेथड निकालना पड़ रहा है, और बड़ी मुश्किल से इन पे कंट्रोल हुआ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो मैंने अभी हमने जिक्र किया कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत कॉमन यूज होता है, लेकिन वो भी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं। अच्छा, अब ये सोचा साइंटिस्ट ने कि चलो ये सारे काम नहीं आ रहे, ये तो प्रोटीन है प्रियस, तो ऐसा करते हैं कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम से इस पे काम कर लेते हैं, इसको किल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी इस पे काम नहीं कर पा एंजाइम्स भी, क्योंकि
अगर आपको याद हो या आप लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा हो एंजाइम का, तो एंजाइम्स नीड अ रिसेप्टर। एंजाइम्स को हर जगह रिसेप्टर चाहिए होता है जहाँ पे भी उन्होंने काम करना। सॉरी बेटा, सवाल मैंने देखा नहीं, किसने सवाल किया था? जी बेटा, क्या पूछा था आपने? मिस, इनके पास अगर ये सारी चीजें नहीं होती स्ट्रक्चर वगैरह, तो फिर ये इतना हाई रेजिस्टेंस किस तरह है? ना इनके पास इनका डीएनए ना सेल वॉल है, तो तो बेटा फिर सेल, इतनी यानी रेजिस्टेंस किस हमारे तरह? डिसइंफेक्शन में जाकर उन पे ही काम करना था ना, सेल वॉल पे। अभी आगे हम मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखिएगा कि वो जाके क्या क्या करते हैं। कहीं पे वो उनकी सेल मेम्ब्रेन को रिजॉल्व कर देते हैं, जैसे अल्कोहल है, सेल मेम्ब्रेन को खराब कर देती है। कहीं पे वो जाके उनके आरएनए को, यानी आरएनए या डीएनए के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो इनके एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करके या ब्लॉक करके करते हैं। तो इनके पास तो ये सारी चीजें नहीं, तभी तो हमारे ये डिसइंफेक्टेंट उनको जाके कहीं काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनके पास तो बस सिंपल एक क्या है, पेप्टाइड चेन कह लें आप। हम्म। ठीक है, तो हमारे डिसइंफेक्टेंट को जहां जाके एक्ट करना है वो तो स्ट्रक्चर वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना बेटा। वही तो। सही। ठीक है, अच्छा अब, हाँ, अब ये हमारा माइक्रोबियल चैलेंज का जो बेटा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी में दो तीन पॉइंट्स और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, यानी अब हम चाहते हैं कि हम सिलेक्ट करें, जैसे मैंने आपसे कहा था इंटेंडेड एप्लीकेशन इसमें एक फैक्टर है। इंटेंडेड एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था, जैसे आप फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्शन आपको चूज करना है ओपीडी के लिए हॉस्पिटल में। फॉर एग्जांपल आपको चूज करना है इमरजेंसी रूम के लिए। फॉर एग्जांपल आपको चूज करना है किसी स्पेशल वार्ड के लिए, जैसे पीडिया वार्ड है या मेडिकल वार्ड है या आई वार्ड है, तो हर वार्ड की भी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। ठीक है, और अलग अलग एरिया, जैसे अब सीएसएसडी कहलाता है या ऑपरेशन थिएटर है। सीएसएसडी जो है वहाँ पे सारे आपकी हॉस्पिटल की सारी जो सप्लाईज हैं, ठीक है, उनको स्टरलाइज किया जाता है। सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट कहलाता है वो। सीएसयू भी कहलाता है, सीएसएसडी भी कहलाता है, डिपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जैसे बैंडेजेस हैं, और अगर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट डॉक्टर्स को जाना है, स्टाफ को जाना है, तो उनके सबके ड्रेसेस होते हैं, गाउन्स होते हैं। ठीक है, और सारी लिनन्स वहाँ पे अगर यूज हो रही हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे वहाँ पे स्टरलाइज होते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रिगरस है। तो आपको इंटेंडेड एप्लीकेशन, यानी आप कहाँ उस डिसइंफेक्टेंट को यूज करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप किससे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने अब हाउस होल्ड में यूज करना है, हाउस होल्ड में तो जरूरत नहीं होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ओरल लिक्विड्स बन रहे हैं या टॉपिकल सोल्यूशन बन रहे हैं या टॉपिकल क्रीम्स या ऑइंटमेंट बन रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, उससे फॉर एग्जांपल जहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो रही है, जहाँ पे आपका स्टोर है, जहाँ से आप डिस्पेंस करते हैं सारे मटेरियल, सारे डिपार्टमेंट्स को, जब भी कोई बैच बनने जा रहा है तो उसके लिए जो अब बैच बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आप अपने स्टोर से या डिस्पेंसिंग से लेकर आते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंटरनेट एप्लीकेशन आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या चीज। हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया, वॉश, अगर वॉल्स वगैरह को आपने वॉश करना है, फ्लोर को वॉश करना है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ चीजें आप वॉश नहीं कर सकते। अच्छा, आपके ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप क्या, आपको पता है क्या करते हैं वो, जो जैसे बेड्स हैं या इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको आप वॉश नहीं कर सकते या जिनको डिसइंफेक्ट कर, उनको आप सनलाइट में रख देते हैं, अगर वो धूप से खराब होने वाली नहीं है तो। सनलाइट भी बहुत अच्छा
आप कह लें सैनिटाइजर है या डिसइंफेक्टेंट, उसमें प्रॉपर्टी है सनलाइट में, ठीक है, जर्म्स को मार देती है, बैक्टीरिया को, वायरसेस को किल कर देती है। तो हम क्या करेंगे अब? फॉर एग्जांपल हमारी फार्मास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, अगर कोई रबर की चीज है, जैसे रबर का स्टॉपर है, रबर की ग्लव्स है, इस तरह की कोई चीज आपको अगर डिसइंफेक्ट करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो केमिकल जो हो रबर के साथ एडसॉर्ब ना हो जाए, प्लास्टिक के साथ एडसॉर्ब ना हो जाए करना है। अगर मेटल का है तो आप आयोडीन नहीं यूज कर सकते, आपको क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड या आपको पर ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है, या क्लोरहेक्सिडीन वगैरह यूज करना पड़ेगा। अगर सरफेसेस को करना चाहते हैं तो सरफेसेस वुडन है या मार्बल है, ठीक है, टॉप कैसा है, या समटाइम ग्लास टॉप है, तो आपने अलग अलग डिसइंफेक्टेंट देखने, ताकि आपका ये नहीं कि आपने सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट या जिस सरफेस को आप क्लीन करना चाह रहे हैं उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है ना, वो उसको तो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन इन सब चीजों के लिए हमें देख कर सोचना होता है। दूसरा ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डिसइंफेक्टेंट हम इनके लिए यूज करने जा रहे हैं वो वहाँ इफेक्टिव भी है कि नहीं, ठीक है। नंबर वन इफेक्टिव होना चाहिए, नंबर टू आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सरफेस को जिसको आप डिसइंफेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए, या जो भी इक्विपमेंट है या जो मटेरियल है, आइटम कह लें आप, ठीक है, उसको उसको वो खराब ना करे, ये जरूरी है, या उस पे एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। एब्जॉर्ब होने से क्या नुकसान होगा? देखें, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी ना वो कम हो जाएगी। यानी कौन सी इफेक्टिव कंसंट्रेशन? विच इज बीइंग यूज्ड टू किल और रिमूव द माइक्रो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रही है, जो अपना बैक्टीरिया स्टैटिक इफेक्ट दे रही है, वो कंसंट्रेशन तो एब्जॉर्ब हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ज्यादा कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट यूज करना पड़ेगा। कोई भी मटेरियल अगर एब्जॉर्ब कर रहा है आपके डिसइंफेक्टेंट को, चाहे वो रबर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो फैब्रिक हो, ठीक है, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, राइट। अच्छा, इसी तरह एक और पॉइंट है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपके पास क्या चीज आती है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है आपके पास कि आप जहाँ पे डिसइंफेक्शन कैरी आउट करना चाह रहे हैं वहां पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डस्ट नहीं हो, ठीक है, कोई भी ट्रैश ना हो। यानी आप जब भी हॉस्पिटल हो गया, इंडस्ट्री हो गई, क्लिनिक, आप घर में देख लें, पहले आप अच्छी तरह से, अगर आप फ्लोर को डिसइंफेक्ट करना चाह रही हैं, आप पहले उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। उसके बाद आप उस पे जो भी आपको डिटॉल यूज करना है या जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज करना चाह रही हैं उसका आप मॉप करते हैं या वॉश कर देते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी यही होता है, पहले आप, अच्छा, हॉस्पिटल में सिर्फ ये नहीं है कि डस्ट होगी या ट्रैश होगी, हॉस्पिटल में पेशेंट का वॉमिटस हो सकता है, पेशेंट का पस हो सकता है, यूरिन हो सकता है, फीसेस हो सकता है, ठीक है, बैंडेजेस जो डिस्पोज ऑफ हुई है पेशेंट का, माइनर ओटी, माइनर सॉरी माइनर सर्जरी हुई है ईआर में, इस तरह की कोई चीज है तो वो पहले आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे गेट अ शील्ड बिहाइंड दिस। आप जो डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करेंगे ना बेटा, वो उस मटेरियल पे जाके काम करेगा, उस मटेरियल से जाके रिएक्ट कर लेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस मटेरियल के पीछे, समझ लें, उसकी शील्ड लेकर बच जाएगा। यानी आपका जो डिसइंफेक्टेंट है वो कहाँ यूज हो रहा है? वो डस्ट, डस्ट के ऊपर चला गया, डस्ट पार्टिकल्स पे चला गया, या कोई पेशेंट के स्पिल्स हैं उन पे चला गया, नहीं, एक्चुअल जो आपको सरफेस डिसइंफेक्ट करनी है या जो आइटम डिसइंफेक्ट करना है, इट मस्ट बी प्रॉपरली क्लीन फर्स्ट। अदरवाइज आपकी डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिव कंसंट्रेशन वहां पे काम नहीं कर सकेगी, ठीक है, इट विल नो लॉन्गर बी डिसइंफेक्टिंग। वो वहां पे डिसइंफेक्ट ही नहीं कर रहा, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो जाया हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है वहां पे। दूसरे जो
ट्रैश मौजूद है, डस्ट मौजूद है, जो भी पार्टिकल्स मौजूद है वो उनके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए पहले आप ब्लड स्पिल हो गया, वॉमिटिस हो गया, पेशेंट का कोई भी सिक्रीशन हो गई फॉर एग्जांपल, उनको पहले क्लीन करें आप, उसके बाद वहां पे डिसइंफेक्शन होगी। ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम ये समझ रहे हैं कि हमने तो डिसइंफेक्ट कर दिया, हमने तो वहां पे अपना फॉर एग्जांपल बहुत इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज कर दिया, लेकिन एक्चुअली है की है। ठीक है। इसी तरह वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस, अच्छा कुछ वायरसेस ऐसा करते हैं, वायरसेस में सम टाइम ये एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, वो एक आप समझ लें कि मर्ज होके ना, एक क्लॉट कह लें या एक बॉल कह लें, एक पार्टिकल ऐसा बना लेते हैं जिसमें आउटसाइड के जो वायरसेस हैं वो तो डैमेज हो जाएंगे, वो तो किल हो जाएंगे, लेकिन वो एक शीट बना लेंगे प्रोटेक्टेड, जो इनसाइड वायरस होगा, तो जो कोर में जो सेंटर में होगा वो बच जाएगा, और जो उस बॉल के आप समझ लें कि जो आउटसाइड जो सराउंडिंग है वो मर जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं वायरल एग्रीगेट। ठीक है, वायरल एग्रीगेट भी बन जाते हैं, तो वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि कहीं इतने अब ठीक है, वो वायरस वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो वहां पे ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन वो वहां पे सरवाइव कर जाएगा। ठीक है। और जो हमारा मकसद है टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अचीव नहीं हो सकेगा इफेक्टिवली। तो वायरल एग्रीगेट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कौन से वायरसेस हैं या कौन से ऐसे डिसइंफेक्टेंट, इसीलिए आप ज्यादातर आप नोट कीजिएगा जब भी आप प्रैक्टिस में जाएंगे कि कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है। मिलाकर यूज किया जाता है उनको, एक फॉर एग्जांपल ज्यादा अच्छा बैक्टीरिया को कवर कर रहा है और फंजाई को कवर कर रहा है, एक वायरसेस को अच्छा कवर कर रहा है। अगर एक फंजाई को कवर कर रहा है तो दूसरा जो है बैक्टीरिया और वायरसेस को ज्यादा अच्छा कवर कर रहा है। ठीक है। तो ये चीजें आप हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम कॉम्बिनेशन यूज कर लें, ताकि हम वायरल एग्रीगेट्स को भी अवॉइड कर सकें। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मेरा ख्याल है आज हम लोग क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। सॉरी, एक तो क्लास लेट शुरू हुई और उसको एक्सटेंड भी नहीं कर पा रहे। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास मंडे को अरेंज कर सकूं। ठीक है बेटा, इफ यू पीपल हैव टाइम, तो आप मुझे अपना फ्री टाइम पहले बता दीजिएगा। क्यों रिवर्स से क्यों कर लें, आपको जल्दी जाना है क्या? अच्छा, आप इनकी लिस्ट जो है ना बेटा, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अब इतनी जल्दी तो मैं नहीं नोट कर सकती। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हाँ, मुझे पता है अब्दुल्ला ने अभी ज्वाइन किया था। किसका ओवरव्यू दे दूं बेटा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का?